A very warm good morning to one and all present. I, your host, Akanksha Rathi, a teacher of Prerna Vidyalaya, wholeheartedly welcome you all to today's session. On the occasion of our third higher learning session, we are privileged to have with us our esteemed guest speaker, Dr. Rakesh Kumar Maurya sir, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, IIT Ropar, Punjab. कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं कक्षा 11वीं से कार्तिकेय बेटा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और बुके देकर हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। Thank you, Beta ji. To share the background of our higher learning session, I would like to invite Madhavi Beta ji from class 11. A very good morning to our esteemed guests, principal, teachers and fellow students. Welcome to our Prerna Higher Learning Speaker Series, where the main aim is to inspire our students towards academic excellence rooted in human values. In June 2019, Prerna Vidyalaya launched the Prerna Higher Learning Institute for focusing on in-depth learning for class 9 to 12. For this purpose, rich subject content was selected and disseminated to the students through audiovisual medium and through our subject mentors from across India. In addition to this, weekly higher learning classes were held for teaching leadership, team building and other soft skills. In 2022, Prerna Higher Learning Institute established the Prerna Higher Learning Speaker Series. In this program, the school invites inspiring public personalities every month to meet our senior students. These sessions helps us to understand the values, qualities and efforts needed to become successful and responsible individuals in society. In the past, we have had the honor to interact and listen to Mr. Pradeep Gupta ji, IBS Additional Director General of Police Chhattisgarh. Mr. Ranbir Sharma ji, IS Collector of Bemitra. Dr. Geeta Venuganti ma'am, a famous ophthalmologist, Dean of Hyderabad Medical College and stem cell researcher and scientist. Mrs. Geeta Patel ji, a district judge. Mr. Kumar Rajesh ji, a young journalist. Mrs. Ashrita Vemuganti Nanduri, an actor and many more. Thank you, sir, for gracing us with your presence today. We look forward to listening to your life journey and learning important and valuable life lessons. Thank you, sir, and once again welcome to Prerna Vidyalaya, a school inspiring its students to live with a sense of fulfillment in the family and society. Thank you. Thank you, Beta ji. Rakesh sir, we are truly fortunate to have you with us today. Before handing over the mic to you, I would like to briefly introduce you to our audience. Dr. Rakesh Kumar Maurya sir is an Associate Professor of Mechanical Engineering at IIT Ropar. He completed his BTech, MTech and PhD from IIT Kanpur. His research areas include internal combustion engines, alternative fuels, engine combustion, emission control and environmental risk assessment. He has received the Early Career Research Award from Government of India and the Young Scientist Award in 2016. He has authored books, contributed to research, publications and has published more than 75 international research papers. His academic journey and contribution to engineering and research are truly inspiring. Now, without any further delay, I would like to hand over the mic to our esteemed guest speaker, Dr. Rakesh Kumar Maurya sir. Please welcome him
him with a big round of applause. सभी को नमस्ते. So I hope everybody is comfortable with Hindi, English or both. तो दो ही लैंग्वेज आता है, मतलब बाकी आधे में भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं. तो जैसा मुझे बताया गया, मतलब पहले थोड़ी सी मैं अपने तरफ से जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे जर्नी के वो मैं बोल देता हूँ. बाकी आपकी जो जिज्ञासा है वो आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं. तो मैं मुझे लगता है जहाँ शरीर आता शुरू में वहीं से शुरू करेंगे. तो मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, एक मतलब फेमस जगह है अयोध्या, मतलब अयोध्या जिले में ही हम है ना पैदा हुए. और वहाँ पे एक गांव है. तो शुरू में मतलब मुझे लगता है कि हम जो गांव का प्राइमरी स्कूल है मैंने वहीं पे पढ़ाई करी. और उसके बाद थोड़ा सा जो भी ठीक ठाक लोग होते थे उस समय पे उन्होंने एक नवोदय विद्यालय स्कीम है, उसका एक एग्ज़ाम होता है, एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है. तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया एंड नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ. तो मैंने बाकी अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है वो नवोदय विद्यालय आज की डेट में अयोध्या, पहले फैजाबाद होता था, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करी. तो जो स्कूल का एक जर्नी है इसमें हम लोग, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल था, तो जो अपने जीने के सारे ही काम करते थे. मतलब रेजिडेंशियल स्कूल है तो कपड़े धोना से लेके पढ़ाई करना या उसका जो भी टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि सारा ही हॉस्टल में रहना है. तो अभी रहता है कि जब तक कोई हमको कुछ बोलता नहीं तब तक नौकरी हम कुछ कर नहीं रहे है ना, या पेरेंट्स ही बताते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, या ऐसा करना है. तो नॉर्मली स्कूल में रहने से अपनी जिम्मेदारी हमको ठीक से समझ में आ जाए. तो उसके लिए जो भी टीचर्स का गाइडेंस हो, मतलब अपने सारे काम करना और उसके साथ जो भी है ना पढ़ाई है उसको पूरा करना. तो शुरू में तो ये है कि हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये भी हो गया कि जो पहले प्राइमरी स्कूल थे, मतलब नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज 6 क्लास से सिखाते थे. तो 5th तक तो मैं पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा. तो हमारा गांव का प्राइमरी स्कूल था. एंड स्कूल में जाते ही तो जब सब बच्चे टॉप के गुड बॉय कर लेते तो मुझे ABC लिखना नहीं आता. तो पिछले अगले उसके अगले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो दिक्कत है वो क्या होता है, मतलब जर्नी सुनने में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो शुरू में इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत हुआ क्योंकि वो खुद ही से मेकअप करना है. तो ऐसा 3 साल तो मेरे को ये सेटल होने में लगा, क्योंकि जब किसी तरीके से पास हो जाओ है ना. तो आई थिंक 3 साल तक तो काफ़ी स्ट्रगल रहा. फिर 8th to 10th तक में मैंने मतलब अपने हिसाब से उसको कवर अप किया. एंड देन अदरवाइज ये होता था किसी तरीके से पास हो जाए, यही बड़ा काम. तो आई थिंक 10th क्लास में साइंस में मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए. बाकी सब कुछ ऐसे ही मतलब ठीक था. तो 96 नंबर आया मेरा. तो उससे क्या है कि थोड़ी हिम्मत और बढ़ी. मतलब एक समय तक तो ऐसा हो गया कि इनके कारण, क्योंकि जिसको भी मैं देखता था तो मुझे लगता कि ये लोग मेरे से काफ़ी बेटर है ना, जो जहाँ से भी पढ़ के आए हैं तो हमारा कुछ हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता नहीं था. तो लेकिन जब मेरा 10th में नंबर आया तो मेरे को ये तो लगने लगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना. ये पढ़ाई तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है ये तो मिलाकर काम कर सकते. इनफैक्ट फिर जब मैं 11th में गए तो वही है, मतलब जो उनका साइंस का नंबर ज़्यादा है तो हमारे टीचर्स ने बोला भाई साइंस पढ़ना. तो साइंस पढ़ना शुरू हुआ. तो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो एक साल में आपने इतना ज़्यादा कैसे कर लिया है, तो लगता था कि चलो एक आध बार गलती से आ जाता है, रट्टे पास हो जाते हैं, बट है ना आगे बड़ा दिक्कत होगा. तो ये होते होते मतलब है कि 12th क्लास में मैंने मतलब अपना स्कूल भी टॉप किया है ना. अब तो उसमें भी केवल ये था, इनफैक्ट उसके अगर प्री बोर्ड्स में देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं हो रहा था. उसका कारण वही है कि हमको पहला चीज़ है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, है ना. और अभी देखेंगे तो ज़्यादातर जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं वो केवल इतने बताते हैं कि यू कैन डू इट, कैसे करना है ये नहीं बोलता है.
सब आदमी का सार बात इतनी है कि यही बोल रहे कि कर सकते हैं, लेकिन हमको अपनी चीज़ों को पहचानना होता है, अपनी चीज़ों को रीअरेंज करना है ना, कि कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी नहीं करनी है और क्या करना है। अगर हम ये डिसाइड कर सकते हैं तो नॉर्मली कर ही सकते हैं। तो ये करके किया, एंड देन उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आईआईटी में जाना है या कुछ भी करना है। तो मैं अपना, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल स्कूल था और वो भी आई थिंक शहर से 10-15 किलोमीटर है, सुल्तानपुर रोड पे थोड़ा सा आगे है, और मतलब ऐसे बाहर भी नहीं निकल सकते थे, मतलब पेरेंट्स के साथ ही स्कूल से बाहर जाना होता था, नहीं तो ये तो स्कूल से सीधा गाँव, गाँव से सीधा स्कूल। तो कोई हमको ये नहीं बताया कि मतलब है कि आईआईटी में जाना है या आईआईटी की तैयारी करते हैं लोग, है ना। तो हम भी जब स्कूल खत्म हुआ तो एक एग्ज़ाम लेके घर पहुँच गए। फिर पिताजी ने पूछा अब आगे क्या करना है। तो हमारे घर के सामने एक चाचा जी रहते थे, वो आई थिंक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे अपना। तो उन्होंने एक दिन उनसे बात हुई, सुबह सुबह वो आए हुए थे, गर्मी का दिन था, तो उन्होंने बोला कि भाई इनके साथ चले जाओ। तो मैं जो है इलाहाबाद पहुँच गया। तो वहाँ पर गए तो नॉर्मली ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो है हमको पहले देने होते हैं, मतलब जब एग्ज़ाम चल ही रहा होता है, आई थिंक मार्च वार्च में ही, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलता है, फिर एडमिशन होता है। तो एग्ज़ाम की डेट सब ओवर हो चुकी थी, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आईआईटी लेके सब बच्चे कोचिंग करते हैं, कोचिंग कर लो। तो मैं जो है उसमें एडमिशन ले लिया, और वो भी है कि जो ठीक ठाक लोग थे वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता था। तो जो आदमी, जो मुझे आज भी याद है कि 4800 रुपये में जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा था, और जबकि अगर उस जो टॉप कोचिंग थी उस समय में भी, वो लोग जो है 30,000 एक्सेल कोचिंग करके था वो देते थे, जिसमें आईआईटी के लोग पढ़ाते थे, मतलब जो टॉप होते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। इसीलिए है कि अगर हमको पहले से पता हो तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ से परिचय हुआ कि मतलब है ना, आईआईटी का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें करना क्या होता है। तो एक साल मैंने ये किया। दूसरी साल मतलब उस समय पे आईआईटी रुड़की जो आज है, वो पहले रुड़की यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम होता था, तो मेरा उसमें हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया, फिर एलआईटी में लिया, क्योंकि वहाँ पर मेटेरियल में जाते हैं, यहाँ पे मेटेरियल इंजीनियरिंग करके मैंने किया। तो उस समय पे भी हमारे जो टीचर्स थे उस समय पे उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार तुम दोबारा दे दो, आई थिंक यू हैव पोटेंशियल। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर आईआईटी में आ गए, कानपुर में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है। तो वहाँ पे आने के बाद भी एक थोड़े समय तक तो देखा, जो हमारा बैकग्राउंड था कि यहाँ पर किस तरह का पढ़ाई होता है, कितना समय लगाना है, क्या एकेडमिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें लगे। और एक जो पढ़ने के टाइम में एक होता है वही हमको फाइनली क्या करना है, क्योंकि इस जनरेशन में स्कूल में जितने आसानी से हमने कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो एक समय पे ध्यान गया कि मतलब हमको लाइफ में क्या करना है। तो अब ये उत्तर देने के लिए भी कोई बहुत है ना आदमी नहीं मिला। तो हम लोगों ने एक वहाँ पर विवेकानंद समिति करके स्टूडेंट जिमखाना का पार्ट एक संस्था होता था, मतलब आईआईटी का ही पार्ट था, तो मैं वहाँ पे जाना शुरू किया। तो कुछ लोग और कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने कुछ एनजीओ में भी काम करना शुरू किया। तो वहाँ से हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ सीनियर थे और हम लोगों ने मिलकर तय किया कि क्या कर सकते हैं। तो ये है कि हमने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो अपने पढ़ाई के साथ मैंने थोड़ा वहाँ पे पढ़ाया, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने। मतलब जो एक काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था, मैं नॉर्मली बच्चों को भी बोलता हूँ, मतलब ऐसे ही हम कोई गाँव के बच्चों को बुला लेते थे, तो शाम को हम लोग बैठते थे, तो जो बच्चे आते थे वो सारे क्लास के, जैसे आई थिंक इसमें भी कुछ छोटे कुछ बड़े लोग दिख रहे हैं, तो हम ऐसे सारे क्लास के बच्चों को बुलाते थे। तो एक नाजिद करके एक लड़का था, तो वो एक दिन आता है और वो पूछता है कि कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो वो बोला कि हम मुझे फिलोसफर बनना है। तो हमने कहा कि भाई तुमको ऐसा आया कहाँ से, मतलब तुम्हें फिलोसफर क्यों बनना है ना। तो क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग भी क्या है आईआईटी में है, तो या तो उसका प्रेरणा दे रहे हैं, या मतलब ये कोई कॉमन तो चीज़ है ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये आउट ऑफ बॉक्स निकला कैसे। तो उसने बताया कि मुझे ये जानना है कि इस दुनिया में हमारा क्या है। मैंने कहा अब ये क्या होगा। तो उसने बोला कि अगर घर में रहो तो घर वालों का काम नहीं करो तो वहाँ मारपीट हो जाती। मतलब उसके साथ सुबह जो है पहले घर में मम्मी ने मारा क्योंकि उसने कुछ सामान नहीं लाया। फिर स्कूल में गया तो होमवर्क नहीं किया था, तो स्कूल वालों ने पिटाई कर दी।
तो बोला कि इससे हमें ये लगता है कि भाई हमारा क्या है ये पता करना है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिलोसफर लोग होते हैं ये दुनिया घूमते हैं और पता करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए मुझे फिलोसफर बनना है और ये पता करना है कि मेरा क्या है, हमारा इसमें है ना, मेरा क्या है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या है। मतलब ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये तय किया या मतलब दिशा दी कि भाई हमें भी तो पूछना है। तब उसी क्वेश्चन को अगर हम डिफाइन करते हैं उस समय तो हमने उसको जो भी बता दिया। आज के डेट में तो बीएससी वैसे करके अपने किसी उसमें लगा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो प्रश्न बन गया कि ये क्या है ना, या हमारा क्या है, दुनिया में क्या है, या हम क्या करने हैं, फाइनली क्या करेंगे। या जैसे तो ये जो क्लैरिटी है एक समय पे हमें ये लानी पड़ती तभी हम कुछ कर पाते हैं। मतलब जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमको अपने लाइफ में क्या करना है इसकी स्पष्टता या मुझे क्या होना है और उसके लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूँगा, ये पता करना तो एक इम्पोर्टेंट काम है। तो ये करते हुए है ना हम लोग ये जो एक मतलब शिक्षा का काम कर रहे थे उसमें अगर जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं अभी एक एच.सी. वर्मा की किताब आती है ना, तो एच.सी. वर्मा जी भी उस समय थे तो उनके साथ उस एनजीओ में काम हम लोगों ने शुरू किया था। और मतलब इसी पढ़ने पढ़ाने के क्रम में या शिक्षा करने पर क्योंकि बहुत सारे जो आप काम कर रहे होते हैं उससे चीज़ें एक नया प्रश्न इकट्ठा हो जाता है। तो हमने शिक्षा पर सोचना शुरू किया कि भाई इसमें भी पढ़ा के क्या करना है, क्योंकि एक तो लगता ही था कि आईटी में जिनका आगे वो तो नौकरी लगा या जो भी एक जगह पर पहुँचेंगे, बाकी क्या क्या करना है। या जो बच्चे हमारे पास आते थे उनका एक नहीं स्पष्ट हुआ। तो ऐसा करके हमने थोड़े समय तक उसमें काम किया, लेकिन जब अपने लिए बहुत सारे प्रश्न बने तो इनके उत्तर कहाँ मिलेंगे, इस उत्तर को ढूंढने के क्रम में है ना किसी एक समय पे कानपुर में एक संस्थान था, उनसे बात हुई और उनके थ्रू इस दर्शन से परिचय हुआ। और आई थिंक उसको जब हमने पहली बार सुना तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग अपने साथ लोग काम कर रहे थे उनकी भी परिचय हुई और उनके साथ एक फिर स्पष्टता बनी और हम इस दर्शन में भी जुड़े और उसको समझने का प्रयास किया। तो ये एक मोटा स्टोरी है जिससे मैं आईटी में पहुंचा। फिर उसके बाद वही है कि रिसर्च में जो भी इंटरेस्ट बना या आगे समझने का एक प्रक्रिया है उसके तहत फिर मैंने एमटेक किया, फिर उसके बाद वहीं से पीएचडी, क्योंकि ये लगा कि आगे कुछ चीज़ों को समझना है तो ये करना पड़ेगा। और बाकी एक निश्चित इसके बाद तो प्रक्रिया ही है। फिर अभी आईआईटी में पढ़ा है, आई थिंक 2013 से तो मैं अभी वहाँ पे पढ़ाता हूँ और उसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, जिसमें नॉर्मली ऑटोमोटिव रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनको पढ़ाते हैं और आईसी इंजन है या जो भी गाड़ी में इंजन लगते हैं उस पर कुछ काम है। तो सब्जेक्ट में इतना मतलब अपने बारे में पर्सनल चीज़ें इतनी हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो अपने तरफ से बोलना चाहता हूँ उसके बाद आप पूछ सकते हैं तो शायद ज़्यादा अपन उस पर कुछ बात कर पाएंगे। जो इस पूरे प्रक्रिया में जो मुझे लगता है कि एक तो हमारी श्रद्धा कहाँ पर है ये पता करना ज़्यादा जरूरी काम है। श्रद्धा कहाँ पर है का मतलब है कि हम क्या होना चाहते हैं, है ना। क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर हम कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब कुछ पता नहीं है, यूट्यूब में लगे तो कितनी देर तक लगेंगे कुछ पता नहीं है ना, या कोई भी एक काम में लगते हैं तो वो पता होना और उसके साथ जो एक सिंसियरिटी होना वो एक जिम्मेदारी का काम करता है। या जैसे अभी अगर हमें आईआईटी में ही जाना है या कोई भी पढ़ाई करनी है तो हमारा जो सिंसियरिटी है या हमारा जो सेल्फ स्टडी है वही काम में आता है। अभी जैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय पे भी ये लगता था कि भाई बहुत सारे लोग खिड़की में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, या हमारे टाइम में होता था कि जब आईआईटी के एग्जाम होते थे तो है ना बड़े बड़े गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, इतने दिन से कोचिंग किया है ना, कोई 6th क्लास से ही कोचिंग कर रहा है, कोई और पहले से कर रहा है। हमें लगता था कि पहले इनका होगा कि हमारा होगा। तो लेकिन ये फाइनली यही समझ में आया कि हम अपनी सेल्फ स्टडी जितना कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को जैसा सीखते हैं, है ना, उससे चीज़ें हमारे में काम आती हैं। तो जैसे अभी जिसको मैं नॉर्मली अब अगर उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि हमारे में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट का बेसिक मतलब इतना ही है कि हम किसी चीज़ को किस आधार पर स्वीकारते हैं, हमारा उसके लिए हम कोई तर्क लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो जैसे जो इसका मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि हमारे आईआईटी में एक स्कूल है, कैंपस स्कूल, ऐसे ही किसी इंस्पेक्शन में मैं गया हुआ था
तो वहाँ पे लकड़ी ज्योग्राफी का पीरियड था, तो बच्चे कुछ कर रहे थे, तो मैंने जैसे पूछना शुरू किया कि भाई धरती कैसे घूमती है ना, धरती मतलब धरती अपने एक्सिस पे घूमती है या सर सूरज अपने एक्सिस पे घूमता है? आप लोगों को क्या लगता है? दिन रात होने का पता है? दिखता क्या है? जब स्कूल आते हैं सुबह सुबह तब किधर सूरज दिखाई पड़ रहा होता है? हाँ, और जब घर जाते हैं शाम को तब कौन घूमता है? तो कैसे पता कैसे चला कि आप घूम रहे हैं? तो ये आपको अगर पता लगा तो ये कैसे पता लगा? कोई बता दीजिए। हाँ बताइए कैसे पता लगा? जब कोई भी ये बताइए आपको कैसे सीखा? क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे को देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन तो यही रहता है कि पहले निकलता इधर से जाता उधर, लेकिन कैसे पता चला कि वो नहीं घूम रहा है, हम घूम गए? ये पूछना जरूरी है कि नहीं, या मान लेना? या किताब में लिखा है इसलिए ठीक लिखा होगा? अभी ये जो प्रश्न है ये जरूरी है। अभी क्या है कि मैं इसीलिए नॉर्मली भी बोलता हूँ कि लर्निंग का एक तरीका ये भी है कि हम जो लिखा है उसको क्वेश्चन करें। जैसे अभी देखिए, जैसे न्यूटन लॉज है, न्यूटन लॉ पढ़े? न्यूटन का पहला नियम क्या होता है और कब पढ़े? अभी हमको लगता है कि क्या लग रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो नर्सरी वाले हैं, उनको न्यूटन का पहला नियम पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? पढ़ाया नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन उसको पता है कि नहीं पता है? देखो कुछ लोग कह रहे पता है, कुछ कह रहे नहीं पता। तो पॉइंट ये है कि जैसे अभी अगर वो खिलौना, छोटा बच्चा भी खिलौना जहां तक जाता है आके फिर वही ढूंढता है कि दूसरी जगह ढूंढता है? अगर मान लो वहां पे नहीं उतरता वो क्या करता है? तब वो किसी से पूछता है कि पक्का है कि कोई उठाया होगा या लिया होगा? ये समझ में आता है? तो इससे क्या माना जाए? उसको ये नहीं पता है कि जो जहां रखी रहती है वो वहीं रहती है। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। यही तो कह रहे हैं ना। तो छोटा बच्चा भी है तो खिलौना वो उसी जगह ढूंढ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको भी पता तो है ना कि यही रहेगा, बिना किसी के हटाए जो है ये नहीं हटेगा। यही तो कह रहा है। तो अगर वो वहां नहीं मिलता है तो उसको पक्का पता है कि या तो कोई ले गया होगा या कोई उठाया है या कोई छुआ है, ये तो पक्का है ना। हाँ। इसी ऑब्जर्वेशन को जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, अच्छा ये वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन न्यूटन का जो काउंटर इंट्यूटिव जो जगह है वो क्या है? वो दूसरे साइड से कि कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं। अब अगर इसको निकालना है तो वो नहीं निकलता है कि नहीं? क्योंकि हम कोई भी चीज अगर फेंक देते हैं तो थोड़ी देर में रुक जाती है। ये समझ में? तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा वाला है वो काउंटर इंट्यूटिव है, रेस्ट वाला तो सबको पता लग रहा है। तो ये जो हम थ्योरी पढ़ा दिए है ना, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों कनेक्ट अगर कर पाते हैं तब जाकर ये बात पूरी होती है। ये आपको स्पष्ट हो? अभी जो ठीक है, अब तो उधर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं जो कहना, मेरा पॉइंट ये था, इसको देखना है, इसको सुनना है ना। तो
तो जो पॉइंट ये था कि अभी हमने जो नियम पढ़े है ना, तो उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि नहीं करते है ना, या जब हम मैथ्स में भी जो कोई चीज पढ़ रहे हैं उसको किस विधि से पढ़ रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई जब हम कर रहे होते हैं तो पढ़ने को तो सारे लोग एक ही न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं है ना, या जैसे लेकिन एग्जाम में सबके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं है ना, किसी का नहीं आ रहा है किसी का आ रहा है, तो वो डिफरेंस कहाँ पर है। तो ये जो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली जो अंतर है सभी में वो इतना ही है। या उसके बारे में हमने कितनी चीजें सोची है, जैसे अभी मान लीजिए IIT में ही जाना है, तो हम उन्हीं लॉज को कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उनको कितना समझते हैं, इसी चीज का तो टेस्ट है कि नहीं। अब उसको चाहे कोचिंग में जाके पढ़ना है, मतलब कुल मिलाकर हमको अब ध्यान देना है। अब वो कोचिंग वाला ध्यान दिलाता है या क्लास में टीचर ध्यान दिलाते हैं या हम खुद ही पढ़ के उस पर ध्यान दे देते हैं, तो भी उतना ही बात है। तो एक तो बेसिक चीजें पढ़ाने के बाद हमारा पढ़ाई करने का तरीका क्या है, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी और बेटर तरीके से हम कर पाते हैं। तो जैसे अभी मैंने बोला कि न्यूटन्स लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने जीने में या बाहर हम उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। या जैसे मैंने वही बोला कि अभी ये धरती घूमती है कि सूरज घूमता है। तो जैसे किताब में जो एक्सपेरिमेंट लिखा होता है ना कि ग्लोब ला के टॉर्च जलाओ, है ना, तो आपको ग्लोब घुमाते हैं, टॉर्च घुमाएंगे तो फिर इफेक्ट वही आ जाएगा। तो अब हमको ये ढूंढना है कि कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिनसे ये पता किया गया होगा। तो जब हम इन चीजों को करते हैं या हमें जो भी नियम बताए गए हैं, हम उनको चैलेंज करके देखें कि ऐसा है कि नहीं है, या उसके सपोर्ट में कितनी चीजें दिख रही है। या जैसे अभी हम कोई भी फिजिक्स में तो नॉर्मली जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम उनको अप्लाई करके अगर देख पाते हैं तो हमारा ग्रेस्पिंग या उन चीजों की समझ होती है। या जैसे हम बोलते हैं कि साइंस में जो एक सबसे बड़ी चीज है उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये समझ में आता है कि हम जो भी चीज करते हैं, है ना, वो उसको हम दोबारा से करेंगे वो वैसा ही होगा। या जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि मान लो कोई आदमी ऊपर से गेंद फेंकता है ना, इतने सेकंड में वापस आ जाती है। तो अगर सेम ही चीज कोई भी करे वो वैसा ही होता है, ये एक नॉर्मल सा नियम है। तो इसका मतलब है कि जिन चीजों को हम कर पाते हैं या जिन चीजों को हम रिप्रोड्यूस करा पाते हैं, उसका मतलब है कि उसकी समझ हमारी पक्की होती है। इसीलिए जब हमको नियम तो दो चार ही है, फिजिक्स में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन उनको समझने के लिए बहुत सारा, है ना, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से। जैसे अभी देखेंगे तो किताब में जो एक्सरसाइज हमको दिया हुआ है ना, वो इतने सारे क्वेश्चन क्यों हैं। या जैसे क्या लगता है अगर हम वापस सोचें कि कितना क्वेश्चन करने से हमको वो चीज समझ में आ जाएगी, क्या लगता है ऐसा कोई बनाया जा सकता है कि एक कॉन्सेप्ट में मान लो हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमको सब समझ में आ गया, ये पक्का मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर दूसरे साइड से देखेंगे कि अगर हमको समझ में आ गया तो हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ये तो पक्का है। या कोई और अगला कोई दूसरा भी बोलेगा तो हम कर पाएंगे, ये समझ में आता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको समझना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम किस तरीके से उस चीजों को समझते हैं। तो हमारे समझने का तरीका ही जो है वो हमको आगे तक ले जाता है, और वो सबका अलग अलग हो सकता है, सबको अपने में ही देखना होता है। मतलब जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं एक लेवल तक ही एक्सप्लेन करूँगा, मेरे एक्सप्लेन करने से ज़्यादा आपको समझ में आता है। ये आपको ठीक लगती है बात? तो हम इसीलिए जो मैं बेसिक अपने तरफ से कहना चाह रहा था पढ़ाई लिखाई को लेकर, वो इतना ही है कि हमारा जो अपना पढ़ने का एक टेम्परामेंट है ये हमको खुद से करना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए जो अभ्यास चाहिए अलग अलग तरीके से हम उसी सेम चीज़ को करके जब एक बार जांच लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। और जब हमको एक चीज़ एक पर्टिकुलर कंडीशन में करके देख लेते हैं, है ना, तो हमारा उसके प्रति विश्वास बनता है। जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि ये जो जिसको हम प्रूफ करते हैं, है ना, वो विश्वास बनने का ही तरीका है।
है ना। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को भी करना हो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके सारे एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 360। कैसे पता चला है? मतलब अगर पता करना हो, वैसे तो नोन जो चीजें हैं रेक्टेंगल है सर्कल है ये तो होगा, लेकिन अलग दिशा लगा दिया तब भी 360 होगा, तो कैसे पक्का कैसे करेंगे? या हमको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पक्का है कि हमेशा ऐसा ही होगा? इसको कैसे जांचते हैं? बताइए, 360 बताया कौन था? इसी से पूछ लेता हूँ, कैसे पता चला? आप खड़े होकर बता दो, ये चीज जिसने बताया था कैसे पता चला, बताने की कोशिश करो। या हाइट एस क्लास वालों से भी शुरू कर लेते हैं, 11th क्लास वाले भी होंगे नहीं? हाँ चलिए, मतलब टेस्ट नहीं हो रहा, आप अपने श्रद्धा से बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। मेरा यहाँ से ये पूछने का मतलब ये कोई टेस्ट करना नहीं है, मैं केवल इतना ही कर रहा हूँ कि हम पढ़ते कैसे हैं या कितने ध्यान से पढ़ते हैं, या पढ़ने के समय जो हमको पढ़ाया जा रहा है उस पर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते, या उन चीजों को देखकर हमारे अंदर कोई प्रश्न जनरेट होता है कि नहीं होता है ना। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत, जैसे सारे का सम जो है वो 360 होता है, इतनी चीजों को समझाने के लिए आपको चाहे कितने एग्जाम्पल करा दिए जाए, लेकिन एक बार अगर हम उसको उसका प्रूफ देख लेते हैं, जिसको अपन डेरिवेशन कहते हैं, है ना, कि कोई अभी इसको प्रूव करने का क्या तरीका है कि एक बीच में डायग्राम बना दीजिए तो 2 ट्रायंगल बन जाता है। तो आपको आएगा कि अगर आपको 2 ट्रायंगल दिख गए तो एक ट्रायंगल का 180 होता है तो 360 होता है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि ट्रायंगल का 180 नहीं होता है, तो उसका भी एक तरीका है ना, एक बेस से पहले दूसरा खींच लीजिए और तीनों को बढ़ा दीजिए तो एक लाइन पे सारे एंगल आ जाते हैं, तो वो 180 होता है लाइन में। लेकिन इतना अगर हमने करके देख लिया तो क्या होगा, फिर हमको पता चल गया कि भाई ये इसका किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो 360 ही होगा, ये समझ आता। तो ऐसे ही जो चाहे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं या साइंस के कॉन्सेप्ट हैं या कोई भी चीज़ है जिनको हम रिलेट करके जब तक नहीं पढ़ते हैं या हमारा अपना क्वेश्चन नहीं है तब तक है ना पढ़ाई में वो बात नहीं बनती, फिर तो हमको रखना ही पड़ता है, फिर कितना समय तक रखेंगे ये एक होता है। तो अगर हम चीज़ों को समझ के करते हैं तो चीज़ें आसान भी होती हैं, और फिर हमको ये जो भी है हम जो भी करना चाहते हैं है ना, या सीखने वाले काम है वो मेरे हिसाब से एक आसान काम हो जाता है। तो ये जो पढ़ाई का जो टेम्परामेंट है जिसको हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मानेंगे तो उसको किसी एक एविडेंस के आधार पर मानेंगे, है ना, उसका कोई तो प्रमाण दिखेगा, और दूसरा है कि किसी एक रीजनिंग के आधार पर मानेंगे। और ये जो चीज़ है यही हमको डिफरेंशिएट करती है जो है कि क्योंकि मैं नॉर्मली जो है कि ये सब टेक्निक जो है खुद ही से निकाला। जैसे क्या हुआ कि इंग्लिश में वही मतलब अपना हाथ तो पहले से ही करना, तो हाई स्कूल में क्या हुआ कि इवन इंटर में भी तो प्री बोर्ड में फेल हो गए। तो हमारे वहाँ जो प्रिंसिपल साहब थे तो उन्होंने बोला कि हमारे इंग्लिश टीचर को बुला के ये बच्चा अगर बाकी सब में हाईएस्ट नंबर मिलाएगा इंग्लिश में फेल तो पूरे में फेल ही माना जाएगा। उन्होंने बोला हाँ, तो बोले तुम क्या कर रहे हो, जो इतना 2 मिनट को मिला था उसके बाद आके उन्होंने 2 घंटा मुझे दिया कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर हमने बताया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने मुझे बुला के टेक्निक बताई कि नंबर कैसे लाते हैं, ये एप्लीकेशन आएगा तो क्या करना है, लॉन्ग आंसर आएगा तो क्या करना है, शॉर्ट आंसर आएगा तो क्या करना है। तो ये मैंने फिर उसके बाद अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर दिया। ये एग्ज़ाम के मतलब लगभग 2 महीने, बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले की बात। फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो लोगों को ऐसा अनुमान था कि बोर्ड का पेपर कठिन आया, तो सबसे ज़्यादा डर जो मेरे से ज़्यादा डर मैंने तो क्या। तो निकलते ही एग्ज़ाम के बाद जो है वो उन्होंने पूछा पेपर कैसा हुआ, तो मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ। तो उनको डाउट हो गया कि ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जितने उनके अच्छे स्टूडेंट थे सबको लग रहा था बड़ा करने का, और फाइनल मार्क्स में भी मेरे से ज़्यादा इंग्लिश में जो 3 लोग हैं। उसका बेसिक आइडिया क्या है, हम अभी क्या है कि कुछ चीज़ों को जैसे लेटर राइटिंग है,
तो आधे नंबर तो केवल उसमें पोजिशनिंग के है, भाई तू कहाँ लिखना है, तो ये लिखना है, तो आगे क्या लिखना है, बीच वाला बॉडी क्या है। उन्होंने बोला था कि कुछ भी ना समझ में आए, क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखा है बॉडी में थोड़ा बहुत ऐसे लिखोगे, आधे नंबर तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही सॉल्व करना है। मुद्दा ये है जैसे मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमको टेक्निक की तरह याद करना, उसमें कुछ पार्ट मेमोरी का भी है। जैसे वही है कि एक टाइम पे हम अपने जो बच्चों को पहाड़ा डेराइव करना भी सिखाएं, तो जैसे 2 सीखे ले लो, है ना, जिसका पहाड़ा करना उसको आगे लगाएं, जितने कट आते हैं उससे हम एक बार पहाड़ा डेराइव करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को याद भी करना है, हर बार आप डेराइव नहीं करेंगे कि 2 नाम भी होता है 2। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका है वो हमारे लिए होगा, हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन हमको सोच के चीज़ों को रखना है। और ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें क्यों पूछना बहुत जरूरी है ना। या जैसे कोई भी लॉज को जब हम पढ़ते हैं तो उसका बाहर कैसा प्रमाण दिखता है, या है ना, चीज़ें कैसे होती हैं उसको करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जब फैन चल रहा है ना, तो कैसे होता है। या जैसे मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ कि हम जितना भी वोल्टेज और इंडक्शन ईएमएफ सारा कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे जो गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है, सुना है किसी ने, बाइक में सभी में होता है। तो एक स्पार्क प्लग में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, छोटे छोटे निकला होता है। तो जो स्पार्क क्रिएट होता है उसमें कितना वोल्टेज होता होगा, क्या अनुमान है? कोई गेस करना चाहेगा? और जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में वोल्टेज कितना होता है? चलिए वाइड गेस कर दीजिए, क्या होता है अंदाज से। गाड़ी का जो बैटरी होता है वो 12 वोल्ट होती है, कितना होना चाहिए? 20 से 30 हजार वोल्ट होता है नॉर्मली, नहीं तो 50,000 वोल्ट भी होता है। तो 12 वोल्ट से 50,000 कैसे ले जाते होंगे, ये होता है। तो जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट से थोड़ा तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है, या फैन चल रहा है वो कैसे हो रहा है ना। तो मुद्दा इतना ही है कि हम जिन चीज़ों को अप्लाई करके देखना शुरू करेंगे तो ये फिजिक्स और इन चीज़ों का पढ़ाई आसान होगा। दूसरा है कि जो नॉर्मली हम देखते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ हमको पढ़ाई की, या तो हम उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ों से करने का अभ्यास, तो उनसे थोड़ा बचेंगे और इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो ये अभी जो हमको लगता है कि लोगों को ज़्यादा समझ में आया, ऐसा बहुत होता नहीं। और आजकल के कोचिंग्स में भी बहुत सारे कोचिंग में यही हो ही गया है कि हम केवल ट्रिक सिखा रहे हैं, तो वो ट्रिक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में काम करती है, अगले अलावा नहीं काम करती। तो ट्रिक सीखने के बजाय अगर हम चीज़ों को होलिस्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो जो मैं दो चीज़ें कहना चाह रहा था कि हमारा पढ़ाई करने का टेम्परामेंट क्या है, या किसी भी चीज़ को समझने का टेम्परामेंट क्या है, अपने लाइफ के बारे में भी अगर समझना है तो हम किस तरीके से समझते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि जो कोई जिन चीज़ों के बारे में जांचना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उनके लक्षणों को पहचानना है, फिर उसको प्रमाण को देखना, तो एविडेंस को देखना और रीजनिंग को देखना, ये एक बड़ा काम है। तो अगर हम इसको ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें ठीक होती हैं। दूसरा जो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि साइंस पढ़ने से साइंटिफिक टेम्परामेंट ऐसा दिख नहीं रहा है लोगों में, है ना। अभी क्या है कि ज़्यादातर समय लोग जो सोचने का काम है ना, वो क्लासरूम में या लैब तक ही जो है साइंटिफिक होते हैं। तो अगर साइंटिफिक है तो पूरे टाइम 24 घंटे साइंटिफिक होना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो अब आपका अपनी तरफ से कोई प्रश्न हो तो मैं आगे उस पर कुछ और चीज़ें बोल सकता हूँ, अगर आप जो जानना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बाकी जो अपने को कहना है, मतलब टीचर समय समय पर बाकी लोग तो करा ही देते हैं।
सही है, कोई जिज्ञासा नहीं है। तो सवाल नहीं पूछोगे तो ज्यादा बोर होगे। एक संबंधित कुछ लेने से नमस्ते, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं 11वीं क्लास में हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उसी में अगर हम न्यूमेरिकल्स बनाने जाए तो वो नहीं बनते, तो उसको हम कैसे बनाएं? नहीं, तो ये कैसे पता चला कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैसे उसमें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो बन जाते हैं, हाँ। लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन पाते। तो इसका मतलब इतना ही है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। जैसे न्यूमेरिकल सवाल दिए क्यों जाते हैं? मैं तो अभी चलो पहले थोड़ा सा तकलीफ करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है? अभी हमको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। अभी जैसे जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कोई ये पूछेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो जो किताब में लिखा है उसको उतार दिया कि भाई कोई चीज रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कोई उसको हिला नहीं देता है, या कोई चीज जब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता है। इतना ही तो लिखा है, ये तो किताब में भी लिखा है ना। तो क्या होता है कि जो हम नॉर्मली जब हमको लगता है कि जो किताब में लिखा है जब हम उसको बोल पाते हैं, है ना, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किताब मतलब समझने के बेसिकली 3 स्टेप है ना। मैं अपने क्लास में भी यही चीज बोलता हूँ कि एक होता पहला जो स्टेज है ना, जिसको कहते हैं कि भाई जो हमको बोला गया, मतलब जो बोला गया उसको हम बोल सकते हैं, है ना। ये पहला स्टेज है किसी भी चीज को समझने का। तो हमको लगता है कि वो समझ में आ गया। तो जैसे जो चीजें मैंने अभी बोली है, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई धरती घूमती है कि सूरज घूम रहा है ना। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कोई एक्सपेरिमेंट भी बोल दूंगा तो आप अगले वही बात आप बोल सकते हैं कि नहीं, या छोटे भाई को या किसी को भी बोल देंगे, हमको लगता है समझ में आ गया। तो जो लिखा है उसको बोल देने से समझ में नहीं आया। चलिए उसके बाद एक दूसरा स्टेज भी है ना, कि हम उसके आधार पर जो बोला गया है उसके जो जिसको हम अभी के भाषा में समझना कह रहे हैं वो वाला स्टेज होता है कि हम उसके आधार पर कुछ आर्गू कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, कुछ और चीजें करके दिखा सकते हैं। जो तीसरा स्टेज होता है कि अब वो हमारे लिए फैक्ट हो गया, जो ठीक से देखेंगे तो समझने का मतलब है वो है कि अब हम उसको किसी भी जगह पर अब हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से करते भी हैं और उस पर हमको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही है ना। ये तीसरा स्टेज जिसको हम समझना कहते हैं ना। तो अभी क्या है कि हमारा जो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसीलिए दी जाती हैं कि हम उसको अलग तरीके क्या कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि हमारे पकड़ में आ गया कि नहीं, वो उसी को चेक करने के लिए ही है। तो अलग अलग कंडीशंस में अगर उसको हम करके देख पाते हैं, है ना, तब जाकर हमको लगता है कि ये नियम समझ में आया। क्योंकि अभी जैसे नॉर्मली अभी जो आप 11th में है, जैसे फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, अब फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है कि पीछे की ओर लगता है? अभी पीछे लगता है, ये हमेशा ही पीछे लगेगा। अभी ये जो
किताब में वैसे ही लिखा रहता है। ये भी कई बार डिपेंड करता है कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे आप चलते हो रास्ते में, या अभी मैं बोलूँ कि आप चलते यहाँ हो, तो आपको क्या लग रहा है, फ्रिक्शन आपके ऊपर लगता है कि नहीं लगता है? किधर लगेगा, आगे कि पीछे? पीछे लगेगा। क्या लग रहा है सबको? ऐसे ही लग रहा है कि जब हम चलते हैं तो आपके बॉडी पर फ्रिक्शन पीछे लगता है कि आगे लगता है? आपस में बोलोगे तो हमें तो मुझे पता लगेगा। जैसे अभी क्या बोला कि भाई न्यूटन लॉ में आप क्या हो, अभी खड़े हो ना, हैं रेस्ट में। अब अगर आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो मोशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्टैंडर्ड फोर्स लगा हुआ आपके ऊपर, वो क्या लगेगा? आप आगे अगर आ गए तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ तभी तो आए होंगे, तो वो किधर लगेगा? ये तो पक्का है कि अगर आपके ऊपर आगे की ओर फोर्स नहीं लगा तो आप आगे नहीं आओगे, और अगर ये नहीं हुआ तो न्यूटन का पहला नियम ही गलत हो गया ना। नहीं, तो आपके ऊपर तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा तभी आगे आओगे, ये तो पक्का है। तो ये तो अभी आपको पहली बार ध्यान में आ रहा है ना। जबकि क्या है, न्यूटन का पहला नियम तो काफी दिन हो गया होगा पढ़े हुए ही। तो अगर मैं बोलता कि न्यूटन का पहला नियम बताओ तो आप बोल ही पाते। अब अभी तो मैंने आपसे पूछा, इसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल कराया? मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आपके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल ही है। लेकिन ये भी ठीक नहीं हुआ, ये समझ में आया आपको? तो इसका मतलब क्या है, आपको न्यूटन का पहला नियम पहले से पता था कि नहीं पता था? हाँ, तो अभी अगर कोई पहले बोलता तब आप ये कहते कि मुझे न्यूटन का नियम पहले पता था, है ना, और मैं थ्योरेटिकली सब लिख लेता था, लेकिन जो है न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। अभी मैंने आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा है, लेकिन यही तो लिखने पाएगा, आदमी आगे आ रहा है तो किधर लगेगा? ये अंतर आपको स्पष्ट हुआ? तो ये थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल का इशू नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था इस एग्जाम्पल में, कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछा। इसका बेसिक केवल मतलब इतने कहना चाह रहा हूँ कि इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का इशू नहीं है। कई बार कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाने के लिए हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाने के लिए हम न्यूमेरिकल भी देते हैं। न्यूमेरिकल देने का एक और आइडिया भी होता है कि हमको एक अनुमान बनता है ना। जैसे अभी आपसे पूछा जाए तो भाई मेरे और आपके बीच में दूरी कितनी है, अगर आपको गेस करना हो तो कितना करोगे? जैसे हम दोनों दूरी है, हमारे आपके बीच में दूरी है, ठीक। अब अगर कोई बोलता है कि कितनी दूरी है, मतलब थ्योरेटिकली तो दिख रहा है कि दूर है, अब ये होगा कि कितनी दूरी है, तो कैसे तय करेंगे कितना होगा? आपका क्या गैस है? 7 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अनुमान होना पड़ेगा कि मीटर कितना बड़ा होता है ना, या सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, या किलोमीटर कितना होता है। आप नहीं कहोगे ना 1 किलोमीटर। इसका मतलब एक अनुमान बना कि ये होता है। तो अगर न्यूमेरिकल, अगर कोई, अब आपको मैं बोलता हूँ भाई किसी केस में मान लो कोई एक बॉल थी जहाँ पे वो 7 मीटर दूर थी, तो आपको एक अनुमान बनता है। तो न्यूमेरिकल का एक एडिशनल फीचर भी जाता है, या जैसे एक आदमी देख पाता है कि भाई 1 किलो और 1 टन में कितना अंतर है ना, या एक, तो ये वाला जो है, या जैसे कोई बोलेगा कि भाई टंकी में पानी जो ऊपर आता है वो कितने प्रेशर में होता है, या जैसे हमारे शरीर में जो प्रेशर है वो एक बार का प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपको फील करना हो कि कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ना। तो इसके लिए न्यूमेरिकल की कई बार उपयोगिता है कि हमको ये भी समझने का ही एक एस्पेक्ट है ना। तो हम थ्योरेटिकली भी कुछ समझते हैं, एक क्वांटिटेटिवली या किसी एक डायमेंशन से समझने के लिए हम न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं। ये समझ में आया?
तो ये न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि हमको वो नियम समझ में आ गया कि नहीं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करने से कुछ एस्पेक्ट पे हमारा और ध्यान जाता है। जैसे अभी जितने भी डीजल की गाड़ियाँ हैं, है ना, उन पे जो फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर होता है वो 1500 बार होता है ना। मतलब जो हमारे शरीर पे प्रेशर है इसका 1500 टाइम। लेकिन अभी क्या है, हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि भाई 1500। जैसे गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर होता है किसी को पता है ना। बाइक कार तो सब चलाते हैं, कभी कभी है ना एयर वाले के यहाँ जाते हैं, कितना प्रेशर होता है। कभी ध्यान किया है, मतलब बाइक में हवा भराने गए हो तो, या चलो गेस करते हैं कितना होगा, हैं? जो प्रेशर है वो हमारे जो अभी हाथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका कितना गुना होता है, क्या गुना है ना। तो जो मेरा पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल से ये फायदा हो सकता है। अभी जैसे गाड़ी वाले के यहाँ जाएंगे तो PSI में बढ़ता है, तो हर आदमी 35-12 लगता है, तो 35 PSI है। मतलब एक बात जो हमारे शरीर में प्रेशर है उसका 14.5 गुना टाइप होता है। तो लगभग 2 से 2.5 बार तक ट्रक भी चल रहा है ना, बाकी बाइक भी चल रही है। तो ये क्वांटिटेटिव होने से, न्यूमेरिकल होने से ये फायदा है ना। इस पर हमारा ध्यान जाता है, अदरवाइज इतनी है। ये ठीक हो गया आपका बात। और कुछ प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो और किसी से पूछना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम अनीश है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। आपसे यह क्वेश्चन था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें कोचिंग करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी, और आप जो कोचिंग की उससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? देखिए इसमें जो पहला पार्ट है कि हमें कोचिंग करना चाहिए, कोचिंग से आपके अंदर कुछ अलग से नहीं रहता है ना। अब अपने जो मैंने कोचिंग का बताया कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो मतलब क्लासरूम से निकल गए। आज के डेट में तो ये भी हो गया है कि हमारे टाइम पे आप अटेम्प्ट नंबर ज़्यादा थे, अभी तो आप 12th के साथ दे सकते हैं। मतलब एटलीस्ट नीट जिनको देना हो तो उसके बाद भी कई बार दे सकते हैं। IIT JEE के लिए तो 2 ही अटेम्प्ट है ना, या तो 12th के साथ या उससे एक बार। देखिए सेल्फ क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है। पहला चीज तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि सेल्फ स्टडी से ही होगा। ये जो मैंने अभी चीजें बताई, जैसे अभी जो न्यूटन लॉ पे बात हुई, ये जो इसको समझना है तो आप क्लासरूम में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, न्यूटन लॉ वही बताया जाएगा जो आपने पहले से पढ़ा हुआ। ये समझ में आता है। अब चाहे क्लास में कर लीजिए, है ना, चाहे टीचर्स के पढ़ाने पे आप जाकर पढ़ेंगे या कोचिंग आधार पर जाकर पढ़ेंगे, आपको ही पढ़कर समझ में आना है। ये समझ में आता है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि हमारे अंदर चाहे कोचिंग वाला है या यहाँ के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, वो कुछ डाल देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये समझ में आता है। आप अपने अंदर तो आपको ही डालना पड़ता है। आज भी यहाँ बैठ के कई बार क्लास में चीजें चल रही होती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, फिर तो कॉन्सेप्ट नहीं जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरा जो अपना ओपिनियन ये है कि आपको क्या कहते हैं, अपने पढ़ने से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा। पहली चीज तो ये है। अब क्या होता है कि जैसे मेरे केस में था, जो मैंने अभी बोला कि अपन ये क्या होता है, कंटिन्यूटी चाहिए होता है। कई बार है कि आप पूरे टाइम अपने से कितना पढ़ सकते हैं वो है ना। जैसे अगर हम लोग तो स्कूल से पास हो तो समय तो पिछले, अब वहाँ पे गए तो एक कंटिन्यूटी चाहिए था, इसलिए ठीक है वो पढ़ाई थी। अभी का कोचिंग का है, कोचिंग का रोल बहुत मिनिमल है, लेकिन कुछ केसेस में है, क्योंकि स्कूल का जो पढ़ाई है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है।
क्योंकि अभी दो तरह की चीज़ें हो गई हैं। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब नॉर्मली ज़्यादातर एग्जाम सब कंप्यूटर पे हो रहे हैं या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं। तो कुछ केसेस में या कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिस की जरूरत है। या जैसे अभी कोचिंग वाले तो बेसिकली करते हैं, जो बेसिक फायदा है वो टेस्ट सीरीज का है कि वो उसी टाइप के जो मेन एग्जाम के जैसा सिमिलर एग्जाम बहुत सारे देते हैं। जैसे हम बोर्ड के एग्जाम के लिए प्री बोर्ड कराते हैं, वैसे ज़्यादातर का टेस्ट सीरीज होता है, तो उनको देने से हमारा प्रैक्टिस होता है। तो इस तरह के कुछ मिनिमम से फायदे हैं, है ना, या पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी सेल्फ स्टडी है या जो अपने में चीज़ों को, जो मैंने बोला था कि पढ़ते कैसे हैं, मतलब जो मेरा मेन मैसेज निकले है कि हमको उन्हीं चीज़ों को कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो अपना जो होगा वो उसी ध्यान देने से होगा, है ना। या जैसे हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको पढ़कर और अप्लाई करके देखना है। जैसे अभी जो वो बोल रहे थे ना कि हम न्यूमेरिकल लगाकर नहीं होता, न्यूमेरिकल भी क्या हो रहा है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के लिए हम दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो यही काम अगर हम अपने से भी कर सकते हैं। या जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अभी जो लोग 11th क्लास में होंगे वो मैकेनिक्स में पहले कहते हैं क्या होगा, एक कुछ वेज सेट का कोई चीज़ है, वो बोलेंगे यहाँ पे एक मास रखा है और उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा या नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लेस है, तो यही तो होता है। अब अगर इतने को ही समझना है तो हम अभी एक ही प्रॉब्लम में, है ना, इस पूरे को कर सकते हैं। जैसे आप दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पूरा टाइम को नहीं निकालते। अभी पहले बार 1 kg का वेट होगा, अगले बार अगले क्वेश्चन में होगा कि अब 10 किलो का रखा है तो क्या होगा, ये समझ आता है। किसी में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा। किसी में एक जो एंगल है वो 45 डिग्री दिया होगा, किसी में 60 दिया होगा, इतने तो होगा। हमको लगता है कि अलग अलग क्वेश्चन है, जबकि एक ही बात है, आपने एक कंडीशन में समझ लेना है। इसीलिए मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आपको जनरल सॉल्व करना है। जैसे पढ़ने का जो एक बेसिक तरीका ये है कि जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसके हिसाब से आप मत सॉल्व करिए। पहले उसको जनरल जो वेरिएबल मान के सॉल्व किया, जब आपका आंसर आएगा उसमें कहीं पर थीटा भी होगा, कहीं पर मास भी होगा, कहीं पर टाइम भी होगा। आप उसको फिर हम उसको एनालाइज करके वापस देख सकते हैं कि अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मास बढ़ाते हैं तो क्या होता है, और ये होता है तो क्या होता है। या जैसे कोई बोलता है कि एक वेज सेल का मास रखा है, करके देखो, है ना, फिर अभी आएगा कि उसमें सिलेंडर रख देंगे तो क्या होगा। हमको लगता है ये अलग अलग क्वेश्चन, जबकि वो अलग नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन से भी उन्हीं सारे चीज़ों को कर सकते हैं, ये समझ में आया। तो जब हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और ये काम कोई टीचर नहीं करा सकता, ये पक्का है। अपने लिए आपको ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन थोड़ी होगा। आपको समझ में आ गया तो आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको और पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाए, ये ना कोचिंग वाले कर सकते हैं ना टीचर कर सकते हैं, ये समझ में आता, ये है बेसिक। तो इसीलिए है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम किसी एविडेंस के साथ पढ़ना है, अपनी रीजनिंग लगानी है और अपने समय को निश्चित करना है कि हमको कितना समय पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना। तो मुझे मतलब मेरा अपना अनुमान है कि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं होगा। आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कितना था? टाइमिंग कितना था, कितने घंटे? हाँ, कितने आवर्स पढ़ सकते हैं? कोचिंग के टाइम पे आज भी जो है मतलब वही अपना क्या है कि अगर मेरे समय को देखेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि जब से मेरे को थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आने लगी, मतलब 2001 के बाद से मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फ्री हूँ, ये समझ में आता है। मतलब जितना है, मतलब अब उसको जो भी आप ऑक्युपाइड बोले, आज तक मेरे को नहीं लगा कि मैं पूरे टाइम फ्री हूँ। मेरे पास सोचने के लिए हमेशा कुछ ना कोई चीज़ है, मतलब है ना। अभी क्या है, जैसे बच्चों को घुमाने भी ले जाना है तो ये मेरे समय में से कुछ निकला है ना। तो मैं अपने लिए मतलब अपने लिए घूमने जाना अभी आज तक ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब बच्चों का भी जैसे है कि इस गर्मी में हम यहाँ गए थे मंडी देखे, लेकिन लोगों को लगने लगा छुट्टी भी हो गई, जब यहाँ पर क्या करना है ना। हमको कभी लगता नहीं कि हम जो है बोर हो रहे हैं या मेरे पास समय नहीं, मतलब बहुत है। तो एक तो ये है, लेकिन आपके पास प्रिसाइज क्वेश्चन है कितने घंटे पढ़े, है ना। ये मुझे
देखना क्या है वो बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होगा आप अपने साथी का देखेंगे कि ये तो 3 घंटे पढ़ता है ना, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। कई बार वो 3 घंटे वाले का हो जाता है, हमारा नहीं हुआ, तो हमको लगता है कि हमारे कोई गड़बड़ हो गया। या जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं IT में गया, मेरे साथ में हमारा तो चलो 800 कुछ ऐसे रैंक था, हमारे साथ में बैठा हुआ ऑल इंडिया 1 वाला भी पढ़ा है, मतलब है ना 4 वाले भी हैं, 10 वाले भी, फर्स्ट ईयर तो सबका सेम ही होता है। और हमारे बैच में मतलब अंडर 100 वाले हमें लगता है कि 50 लोग होंगे या 25-30 तो होंगे, मतलब तब IT का हमको चाहिए तो था, अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब हमें लगता था कि इन लोग जो है वो कम ही पढ़ रहा है, तो मुद्दा वो नहीं है। जैसे हर आदमी को एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कितना समय देना ही पड़ता है, कोई पहले से सीख के आया ऐसा नहीं है। जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, या जैसे मैंने जो न्यूटन लॉ पे अभी बोला, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ध्यान पहली बार गया होगा, है ना, या जैसे मैंने बोला कि बच्चों को भी न्यूटन लॉ पता होता है, तो मुद्दा वो नहीं है। हर बार जैसे मेरा कभी एक टाइम पे ध्यान गया या मैं किसी चीज़ पर ध्यान दे रहा था, उस समय पे ध्यान दिया, आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी एक चीज़ पर आपने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ों में होता है कि प्रीरिक्विजिट है ना, कि जैसे आपको अगर मान लीजिए एक लेवल का चीज़ पढ़ना है तो आपको कैलकुलस आना चाहिए, या ये वाला पढ़ना है तो आपको अलजेब्रा का ये वाला चीज़ पता होना चाहिए। तो कई बार होता है कि जब बड़े कॉन्सेप्ट को देखते हैं, प्रीरिक्विजिट अगर हमारा नहीं है, मान लो हमने उसमें नहीं ध्यान दिया है, तो उसी प्रॉब्लम को करने के लिए हो सकता है मुझे 2 घंटे चाहिए, अगले को 1 ही घंटे चाहिए, क्योंकि उसने उसको प्रीरिक्विजिट पहले किया हुआ है। ये समझ में आया? तो घंटा नहीं मैच कराना है, हमको कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट हमारा कितना तैयारी है। जैसे कई बार होता है कि मान लो आपने 9th में होना, जैसे मान लीजिए 9th में आते हैं, कुछ 8th क्लास के या 7th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब एक बच्चे को मान लीजिए 7th क्लास का वो कॉन्सेप्ट याद है, तो वो तो सीधा उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आपको क्या करोगे, पहले 7th क्लास की किताब खोल को फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट देख लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको कर सकते हो। तो वो जो आपको पहले देखने के लिए तो समय लगाना पड़ेगा कि नहीं, ये बेसिक काम है, ये समझ में आया? तो आप घंटे बाद मैच कराओ, है ना, और समय का सदुपयोग करो, ये मतलब बेसिक लाइन है ना। मतलब क्या है कि स्ट्रेस देके पढ़ने से मैं बोल दूँ कि मान लो है ना कि 12 घंटे पढ़ते थे, इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो मेरे लिए 12 जरूरी हो सकता है, आपके लिए 8 ही हो तो क्या करो, है ना, या आपके लिए 14 जरूरी हो तो भी एक मुश्किल काम है। लेकिन करना क्या है, ये बेसिक होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि आपको पता होना पड़ता है कि मुझे इस चीज़ के लिए कितना समय चाहिए। मैं अगर इससे रिलेटेड 2 मिनट में मैं अपना IIT कानपुर का बीटेक के टाइम में आइडिया बता देता हूँ। जब मैं ये सब में गया है ना, तो पहले सेमेस्टर में मुझे ये तो समझ में आ गया कि IIT हमको क्या क्या दे सकता है और कहाँ पहुँचाएगा, है ना। तो उसके बाद अपन जैसे बताया कि मैं इधर उधर के कामों में लग गया है, इनके साथ उनके साथ, है ना, स्कूल शुरू कर दिया। मैंने एक सेमेस्टर में अपनी सारी क्लासेस बंद करके स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, 3rd ईयर हमारे साथ एक और है ना। लेकिन अब ऐसा थोड़ी मुझे एग्जाम नहीं देना है, वहाँ पे एग्जाम्पेड है, क्लास नहीं है। लेकिन क्या है कि मुझे कितना करना है, तो उस दिन क्लास में क्या पढ़ाया गया है ना, तो वो जो क्लास में जाके लोग नोट्स बनाए, किस किताब में टेंटेटिवली ये मिलेगा, मैं उसी दिन करता था। हमारे यहाँ पे जैसे मिड सेमेस्टर एग्जाम और एंड सेमेस्टर एग्जाम होते थे, जैसे हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होता है, तो हमको एक मेरा अपना अनुमान था कि भाई मैं कितने घंटे जाके पढ़ सकता हूँ, और एग्जाम शुरू मिड सेम एग्जाम के 3 दिन पहले और एंड सेम के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले अपने को पढ़ना है। लेकिन उस समय अपने को ये नहीं खोजना है जिस दिन इस क्लास में क्या पढ़ाया गया था, तो जिस दिन का जो क्लास छूटा है उसका क्या क्लास में पढ़ाया गया है, मुझे किस किताब से पढ़ना है या किस में बेटर है, अगर 2 से पढ़ना वो एक दिन फोटो कॉपी करा के स्टेटस करके रखते हैं। इसका बेसिक लाइन ये है कि हमको ये पता होना है कि इस चीज़ के लिए इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के लिए मुझे कितना समय चाहिए। तो ये होता था कि भाई उस समय पे अगर मेरे को कोई भी बोलेगा तो अपन क्लासरूम में नहीं होते थे, और लाइब्रेरी 24 आवर चलता था, है, तो अपन सोने के लिए बीच में आ जाते थे। लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि मैं नहीं गया इस सेमेस्टर ऐसे ही करना है तो ये आधा सिलेबस पढ़ना है, इसका कोई मतलब नहीं। पढ़ना उतना ही है, द पॉइंट ये कि आपने पहले नहीं किया है, इस समय करना पड़ेगा। तो उस समय के लिए
बहाना नहीं है, कभी मन नहीं कर रहा है ना, थोड़ा चाय पी आते हैं या चार लोग बैठ के वहाँ घूम रहे हैं तो ये कर लेते हैं, फिर वो नहीं चलेगा। उस दौरान अपने को कोई नहीं उठेगा, बाकी टाइम में आप पूरे टाइम खाली नहीं पी सकते। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी इतनी है कि हमको अपना तय करना है कि मुझे कितना इस चीज़ को समझने के लिए हमें कोई कितना समय चाहिए। और उसमें जो मैंने सार बात इतनी ही मानी कि भाई कोई भी आदमी गॉड गिफ्टेड नहीं है, मतलब अभी बहुत सारे लोग लगता है ना ये गॉड गिफ्टेड है, तो हम लोग कोई फ्री में नहीं आए हैं। सारे या तो सारे ही गॉड गिफ्टेड है या तो कोई भी नहीं, बात इतनी। लेकिन यह है कि जिन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है वो चीज़ हम समझ पाएंगे। कई बार अगर प्रीवियस समझना तो करना पड़ेगा। अगर आपने मान लो पीछे की क्लासेस में कुछ नहीं समझा तो क्या करोगे भाई, आपको इस क्लास में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले किया है तो आप अभी रिलैक्स भी हो सकते हैं या कुछ और चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं या जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं, आप उनको अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करके देखें। या इवन जैसे जो हमारी कोर्स की किताबें हैं आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, है ना। या जो अलग मतलब जो भी आजकल साइंस, इवन साइंस फिक्शन भी पढ़ लो वो भी कोई बात नहीं है ना। लेकिन हमारा टेम्परामेंट भी जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जांचने वाला मोड या क्यूरियोसिटी एक जरूरी काम है। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जो मैं नॉर्मली जो मेरा फेवरेट वाला है स्पिन के साथ। जैसे बोलता कि आपने साइंस पढ़ लिया और मैंने पूछा कैसे हो। जैसे अभी एक स्टोरी पढ़ते हैं ना कि अंगद गया रावण के दरबार में, सुना है, उसने उसको केयर नहीं दिया तो अंगद ने क्या किया कि अपना पूंछ को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि रावण के सिंहासन में बड़ा जो है वो बना दिया, उसके ऊपर बैठ के बोला। ये पढ़ा ये तो बातें नहीं पढ़ा है ना। आप अगर देखेंगे तो रावण सागर में भी यही दिखा है, वो कुछ बढ़ाता और इतना बड़ा हाइट कर लेता है, उससे बड़ी हाइट हो गई और फिर उस पर बैठ के वो उनसे संवाद करता है। अब कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई कुछ जो है इसमें मास कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ शरीर से निकली होगी तो शरीर के ही कार्बन अगर कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो शरीर में जितना कार्बन है कुछ में होगा तो आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब उसमें मतलब मेरा कहना केवल इतना ही है कि मास कंजर्वेशन पूछना है कि नहीं पूछना। तो अभी जो लोग नहीं पूछ रहे हैं उनको हम लोग केवल नाम था कि ये कुछ नहीं, मतलब ये तो क्या है साइंस पढ़ रहे हैं तो जैसे वहाँ पे स्टोरी पढ़ रहे हैं वैसे ही साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ये पक्का है। और वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या है ना, कई बार स्किल्स एग्जाम में भी फेल हो गए, ठीक है। चलिए नमस्ते, मेरा नाम अंजनय है, मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि आप जो कंबस्टन इंजन पे काम करते हैं, तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो करो या फिर मरो वाली सिचुएशन हो गई है पूरी इंसानियत में, तो आपको क्या लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो जो कंबस्टन इंजन के आगे पहुंच जाएंगे यूज में और एफिशिएंसी में, उसका पॉइंट आएगा कि नहीं और कब आएगा, अगर आएगा तो? ये कठिन क्वेश्चन, मतलब आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अभी जो बेसिक प्रॉब्लम है, मतलब अभी इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको डील कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे अभी जो कंबशन इंजन है, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, तो पहली चीज तो ये है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, क्या लगता है क्यों हो रहा है? मतलब फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक, कुल मिलाकर ये है कि अभी कुछ गैसेस हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उनमें मीथेन है और ये है, पर उसमें जैसे CO2 है उसको एक बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है, उसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से कई गुना ज़्यादा भी है। लेकिन मेन बात यह है कि CO2 ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये एक नोन फैक्ट है। या जो अभी देखेंगे तो कुछ 400 से ज़्यादा इन्वायरमेंट में हुआ। तो एक तो ये है कि जो हमारा कंबशन इंजन है, अगर आप उसमें पूछेंगे जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो तो CO2 ही है। तो कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो हम क्या चाहते हैं कि कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाए और हाइड्रोजन जो है वो
इथेनॉल जलाएंगे तो भी वही होना है। इथेनॉल को हम क्या मानते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल है। अभी जैसे E20 कर रहे हैं लोग, उस पर हमारा यूज चल रहा है देश में, तो इथेनॉल जलाएंगे तो भी CO2 ही होगा। लेकिन वहां पर यह हो सकता है कि एक जगह ऐसा आएगा कि हम नेट कार्बन ऐड कर रहे हैं कि नहीं इन्वायरमेंट में। अभी तो सारा आइडिया इतना ही है कि हम पेड़ से, जैसे रिन्यूएबल करने का मतलब है कि जब हम पेड़ से CO2 ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जो हम फ्यूल जलाते हैं उससे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको जीरो कर पाए तो नेट जीरो हो गया, तो हमारा चीज़ें चल रही है ना। एक जो बेसिक सोल्यूशन है वो ये है। अब पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी हम आज के डेट में कुछ जगह पे नॉर्म्स आ गए कि CO2 को कम करने के भी नॉर्म्स आ गए, एफिशिएंसी के लोग जो आप बोल रहे हैं। एफिशिएंसी करने का मतलब इतना ही है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेने से हम कितना CO2 डाल रहे हैं, हमारा फुटप्रिंट कितना है, यही हो रहा है। ये बात तो ठीक है कि हमको उसको मिनिमाइज करना है, उसके लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज को कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो अभी क्या है कि आप जैसे मोहाली जैसे शहर में जाएंगे तो अभी नॉर्मली हो गया कि घर में 2 गाड़ी है, या कई बार है कि हमको जाना कहीं भी नहीं है लेकिन हम फॉर्च्यूनर से जाएंगे, 3 लीटर का गाड़ी होगा, या एक आदमी ही जा रहा है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में अभी चल रहा है BS6 है ना, जो पोल्यूशन का नॉर्म है। तो यूरो 4 से 6 आए तो हमको लगता है पोल्यूशन कम हुआ, जबकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पर व्हीकल हम कम करते हैं लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान देना है। जो मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो रिन्यूएबल को हम कितना यूज़ करना है वो भी करना है, लेकिन हमको चीज़ों का सदुपयोग भी करना है। अगर इसी विधि से करेंगे तो फिर केवल रिन्यूएबल से पूरा कर पाएंगे, इसकी संभावना कम ही लगती है ना। लेकिन हम चीज़ों के सदुपयोग में करेंगे और तो रिन्यूएबल्स के जो और भी साधन, मतलब देयर इज नो सिंगल सोल्यूशन है ना। जैसे अभी मान लो मेथनॉल से कर दिया है, इथेनॉल से कर रहे हैं, या मतलब जिन चीज़ों से भी कर रहे हैं तो उनको हमें करेंगे तो एक पॉइंट पे हो भी सकता है कि हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि ये जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन, जिसका आपने पॉइंट किया, जो कंबशन में जो हमारा रिसर्च एरिया है, इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 20 to 25% है। ये भी आपको याद रखें। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी 75% है उसको बाकी और भी चीज़ें करनी है। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका ये प्रश्न है ये तो ठीक है, हम उसे कर सकते हैं या काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन ये कब होगा, अगर इसका समय पूछेंगे तो जब तक है ना एक कलेक्टिवली हम पॉलिसी के लेवल पर करें और हम सभी लोग का जो मानसिकता बने कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है और रिन्यूएबल चीज़ों का यूज़ करना है, तब तक तो नहीं होगा, ऐसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable guidance and for sharing experiences with us. Also, thank you for explaining importance of observation, understanding and questioning in life. हमारे बच्चों के प्रश्नों का आपने इतनी सहजता और स्नेहपूर्ण उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साधन भैया जी, रिभा दीदी जी, पूनम दीदी जी और गोल्डी भैया जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि प्रेरणा विद्यालय परिवार की रीत निभाते हुए आदरणीय अतिथि महोदय डॉक्टर राकेश मौर्य सर जी एंड डॉक्टर अतुल सर, एसोसिएट प्रोफेसर IIT मंडी हिमाचल प्रदेश, को डायरी एवं मानव तीर्थ से लाए गए उपहार प्रदान करें।
like to sincerely thank Dr. Rakesh Kumar Maurya sir for his valuable time, inspiring guidance and for sharing his experiences with our students. A big thank you to all the members of Prerna Vidyalaya for their meticulous planning and execution of this session. Thank you sir once again for making today's session informative and inspiring. Have a wonderful day. Thank you.